So, welcome back, friends. Now, this session, after the previous session, we will continue with the advanced features of MS Word. I'll be sharing my screen now. So, I hope you are able to see the screen, and this is where we were earlier. So, let's see ribbon by ribbon what are the features which are available in MS Word for us to use. The first one is the home ribbon. This is mostly formatting features. Here, we use the copy paste and font formatting and then paragraph formatting. Styles generally we don't use, but these styles are very powerful and very useful if you are editing a large document. And finally, you have find, replace, and select. Select whether you want to select object or you want to select the text or what. So these are some of the important tiles in which I would be discussing the styles. ये styles वाली जो टाइल है इसमें आपके काफ़ी सारे functions hidden functions हैं जो कि those you can use in improving your speed. Next is the insert menu, in which insert ribbon, in which you can see whether you want to insert a cover page or blank page or page break, then table, then picture, clip art, shapes, smart art, chart. These are all common functions. Finally, hyperlink, bookmark. Uh, Hyperlink means when you click on that link, it will take you to the web address or local LAN address. A bookmark means if you want to bookmark something, the list of bookmarks can be printed in one another page where by clicking that bookmark, you can go back to the place in the document जहाँ पे आपने वो bookmark लगाया था. Cross reference is generally used for very large documents. Very large documents in the sense, let's say you have a cross reference of an author. एक ऑथर का क्रॉस रेफरेंस दूसरे पेज पर है कि जैसे उस ऑथर के क्रेडेंशियल्स आपने दूसरे पेज पे लिखा है तो आप एक पेज जहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस एंटर कर रहे हो वहाँ पे क्लिक करने पे वो ऑथर के क्रेडेंशियल पे चला जाएगा. दिस इज व्हाट क्रॉस रेफरेंस इज. हेडर फुटर पेज नंबर टेक्स्ट बॉक्स. In quick parts, there are some important fields that I'll be discussing. Word art, decorative fonts, then drop and cap and signature line means हर पेज पे जैसे आपको एक लाइन चाहिए जिसमें आपका सिग्नेचर हो. Signature in the sense edited or created by so and so on this and this date. This is kind of signature line. If you want to insert date and time, if you want to insert an object like what I said, शुरू में मैंने बताया था जिसमें कि आप एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना के उसमें या फॉर एग्जांपल ऑटोकैड फाइल, एंड ऑटोकैड फाइल कैन बी एन ऑब्जेक्ट. एक पूरी ऑटोकैड की फाइल को आप MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. जब उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोकैड खोलेगा. ऑटोकैड में आप एडिटिंग करेंगे और जब उसको क्लोज करके सेव करेंगे तो वो वर्ड में पिक्चर चेंज हो जाएगी. These are kind of objects. Equation symbols, they are easy. Third is page layout, in which you can have different kind of themes, fonts, effects. This is not I am going to discuss. I am not going to discuss this. Margin, orientation, sign, column, ये सारी चीजें बहुत easy हैं. ये भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा. Watermark, page color, page borders, very easy. Indent, spacing, again very easy. And then aligning a particular image, left align, right align or whatever. So ये वाली image में इतना important कोई रिबन नहीं है. And then hold on please. And then we have this finally fourth is reference. This reference ribbon is the, I would say, most powerful but least used ribbon in MS Word. Here where you can use table of contents, automatically insert table of contents. You see जैसे आपने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया 300-400 पेज का और उस पेज में अलग अलग चैप्टर्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं.
और आपको उसकी एक टेबल ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट के फ्रंट में चाहिए. सो जनरली लोग क्या करते हैं कि दे कॉपी एंड पेस्ट एवरीथिंग, ऑल द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग, एंड देन दे सी द पेज नंबर्स एंड दे टाइप द पेज नंबर्स. बट फॉर एग्जांपल एक नया चैप्टर बीच में ऐड हो गया, या बीच में से कोई कुछ कंटेंट ऐड हुआ या डिलीट हुआ, उससे उस पॉइंट ऑनवर्ड्स के सारे पेज नंबर चेंज हो जाते हैं. सो इन दिस केस आपको वो पूरी एक्सरसाइज फिर से करनी पड़ती है, और मिस्टेक्स के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. सो इसमें वर्ड में कैपेबिलिटी है कि टेबल ऑफ कंटेंट खुद से अपने आप बना देता है. सो आई विल शो यू हाउ टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट्स. बट टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है कि आप स्टाइल्स पे काम करें. सो ये जो स्टाइल्स हैं यहाँ पर, इन स्टाइल्स से ही टेबल ऑफ कंटेंट बनती है. ओके. सिमिलरली फुट नोट, एंड नोट, जैसे कि कहीं पे कुछ एक इक्वेशन है, उसमें आपको साइट करना है कि वो इक्वेशन सो एंड सो साइंटिस्ट ने दी थी, सो एंड सो जर्नल पेपर में पब्लिश हुई थी, तो आप वहाँ पे स्टार लगा देंगे और नीचे पेज के एंड पे उस स्टार का मीनिंग क्या है वो लगा सकते हैं, या चैप्टर के एंड में आप वो लगा सकते हैं कि उस स्टार का मीनिंग क्या है, या हैश लगा दिया, उस हैश का मीनिंग क्या है, या 1 2 3 मार्किंग कर दी, उसका क्या है. सो ये सारे आपके फुट नोट में आते हैं. फुट नोट मीन्स पेज के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन, एंड नोट मीन्स चैप्टर के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन, चैप्टर या बुक के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन. सिमिलरली साइटेशन, साइटेशन इज अगेन फॉर ऑथर्स, कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप रेफर करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एक पर्टिकुलर थ्योरी इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दी है, उसके लिए आप साइटेशन वहाँ इंसर्ट कर दीजिए. उस साइटेशन की बिब्लियोग्राफी आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है. देन ये यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का आपको दिख रहा है. सो बिब्लियोग्राफी के अंदर जो आपकी सीक्वेंसिंग है 1 2 3 या ABC या स्टार हैश एट द रेट, उस सिंबल के हिसाब से आप बीच में साइटेशन क्लिक. एंड इसका एक एडवांटेज और ये भी होता है कि व्हेन यू क्रिएट HTML पेज, इट क्रिएट्स लिंक्स. सो आप उस पर पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हो और वो पर्टिकुलर ऑथर पे को हाईलाइट कर देता है. सिमिलरली कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे भी है क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट मेनू में, और आपका रेफरेंस मेनू में भी है. देन फाइनली इंडेक्स. आपने देखा होगा जनरली बुक्स के एंड में एक इंडेक्स होता है, एट द एंड ऑफ द बुक देयर इज ए इंडेक्स, और उस इंडेक्स में ये भी होता है जो जो टेक्निकल टर्म्स है वो किस किस पेज पे मेंशन हुए हैं. सो दैट इंडेक्स यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर. एंड फाइनली साइटेशन इज सिमिलर, जो मैंने पहले बताया उसकी जैसा ही है साइटेशन, कि आप पर्टिकुलर ऑथर को साइट करना चाह रहे हैं, जिससे कि बिब्लियोग्राफी सिमिलर ये यहाँ पे है. देखिए ये जो थर्ड नंबर पे रेफरेंसेस टैब में इंसर्ट साइटेशन, उसकी टेबल यहाँ पे से क्रिएट होती है. तो पहले इन चार टेबल का हम, इन चार रिबन्स का हम एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको so let's say I have a small file practice.doc. I created a file. So सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, you should type all the text. This is the first thing, that you should type everything. Don't go into formatting. फॉर्मेटिंग पे मत जाइए. सबसे पहले आप सारा टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, जो भी टेक्स्ट है, इंक्लूडिंग हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर टाइटल, एवरीथिंग. यू टाइप एवरीथिंग, and then formatting can be done by using styles. एंड देन लेट्स से हमको उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना है, साइटेशंस भी बनाना है, उन सब का हम अभी एक एग्जांपल करके देखेंगे. सो लेट्स से आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड एवरीथिंग, ओके, जिसमें कि मेरी इमेजेस भी हैं, हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं. ओके, सो लेट्स से ये हेडिंग्स हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं, और ये चैप्टर के टाइटल है. सो व्हाट आई कैन डू इज I can create a style for this chapter, another style for this heading, another style for images, another style for let's say image title. Image का title let's say है कि CO2 in the history of Earth.
हाँ, CO2 लेवल्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये मेरा इसका इमेज का टाइटल है। सिर्फ टाइप करना है, इमेज का नंबर क्या है वो चीज़ें आपको नहीं लिखनी, वो आपकी स्टाइल से ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेट्स से दिस इज द so I will first create uh, a type a style for title of the chapter. Okay, so let me take title, this title, and when I click here it is showing 16 Times New Roman, bold and center line, ये इसकी फॉर्मेटिंग है। सो दिस इज, ये जो टाइटल है ये इसमें वर्ड में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अब मुझे इसको चेंज करना है। लेट्स से मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि इट शुड बी 16 एरियल बोल्ड, not let me make book Antica, book Antica 16 bold and color is black, center line. This is my chapter and it should be prefixed with chapter 1. Okay, because it is chapter 1 it should be prefixed with chapter 1. Okay, so what I will do is I will put a number in front of it. Okay, ये नंबर में क्रिएट हो गया, कन्वर्ट हो गया। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप यहाँ पे नंबरिंग दे दो, create numbering, one has come and now customize it. How to customize it? ये आप नंबरिंग का जो होम रिबन में नंबरिंग के पास में जो एरो है उसमें आप यहाँ पे से चैप्टर 1 उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये चैप्टर 1 आपको नहीं दिखता है देन यू गो एंड क्लिक ऑन द डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। ओके, और यहाँ नंबर फॉर्मेट के आगे कौन सी नंबर स्टाइल चाहिए हमको, 1 2 3। ओके, एंड इट शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ chapter and then number 1 will come as it is. Click OK. Okay, so this is chapter 1 and again this chapter 1 should be capital. It should be capital, right? So again go to define new number and instead of this make it chapter 1. Okay, now chapter 1 climate change is likely effect on water resources will come. Now what you do, now next is let's say heading 1. heading 1 का by default क्या दिया हुआ है, 14 Times New Roman bold. If it is okay then I can accept it, otherwise let's say I want to make it book Antica 14 bold and its color should be black and it should be left aligned, not justified. So left align bold book Antica 14, that is my heading 1. This is a paragraph, by default it is Times New Roman 12 bold and justified. I want to make it justified is okay for me, book Antica 12 justified and line spacing I want is 1.15 instead of 1.5. Okay, and in paragraph paragraph से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, पहले पैराग्राफ से बाद में कितना स्पेस छोड़ना है। ये जो है दिस इज पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ना है और बाद में कितना है। सो लेट्स से आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है मुझे पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, पैराग्राफ के बाद में 10 पॉइंट्स का स्पेस छोड़ना है। And now what we do is now we update these styles according to what we have created. This chapter 1, select everything and then go to this title. अभी मैंने चैप्टर टाइटल का नाम टाइटल दिया है, राइट क्लिक एंड अपडेट द टाइटल टू मैच सिलेक्शन एंड यू क्लिक दिस, this style will change. Now go to heading 1, right click on heading 1 and update heading 1 to match selection. Again normal, this is normal, select this thing or go to this thing or select this thing, then right click on normal and update normal. Okay, as you click on update, everything else which is having normal style will change. By default everything is normal, so by default हर किसी का स्टाइल नॉर्मल होता है। ओके, सो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया जिस में वो स्टाइल नॉर्मल अप्लाई थी वो सभी में चेंज हो गया। नाउ से दिस इज हेडिंग 1, से नहीं दिस इज हेडिंग 1, go to home and just click on heading 1 and formatting will be applied.
Similarly, एविडेंस ऑफ रैपिड क्लाइमेट चेंज, हेडिंग 1। आपको वो सारी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है कि उसका फॉन्ट चेंज बुक एंट्री का करना है, फॉन्ट साइज 14 करना है, बोल्ड करना है, ये सब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ उस टेक्स्ट पे जाइए एंड जस्ट क्लिक ऑन हेडिंग 1, ओके, एंड सो ऑन हेडिंग 1। और देखते हैं इसके बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट, हेडिंग 1, basin wise situation, heading 1. Now Indus Basin, this is a new heading, this is a subheading. So let's say I want to make it bold 12 book Antica, bold 12 book Antica and left align. So in this heading 2, select here, select this text, right click heading 2 and update heading 2. Now आपका जो heading 2 है, that is now 12 bold book Antica center line, left aligned. This is Indus Basin, Ganga Basin. Click on Ganga Basin and click on heading 2. ये उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। थर्ड इज ब्रह्मपुत्र बराक अदर बेसिन, क्लिक ऑन हेडिंग 2, उसकी हेडिंग अप्लाई होगी। ओके, नेशनल वाटर मिशन, क्लिक ऑन हेडिंग 1 एंड सो ऑन। go on doing this for the entire thing. Okay, you will be able to apply the entire formatting in about 1 hour or so for the entire book if it is like 200 pages or so. So generally it is a very big task that can be done very easily, very fast and with accuracy. Now images, generally हम images में number देते हैं, जैसे कि image 1 या figure 1, figure 2. So let's say I want to give it as fig.1 and then CO2 levels, then figure 2, then figure 3. Okay, so how to do that? Now again go to home menu, home ribbon, then click on numbering and in this arrow change, define a new number format, and instead of chapter it will be figure 1 or 2 or whatever. Okay, number style is this. Click OK. Click on the number, then define your number list, then figure 1. Okay, now and I want to make it centered, so this is centered, and generally this thing is italic also. So let me just adjust the margin a little bit. Okay. Centered. Now this one I want to make as a new style कि मुझे जिस फिगर का टाइटल देना है, सारे फिगर के टाइटल में मैं बस क्लिक करता जाऊंगा और नंबर अपने आप आते जाएंगे. So अब I don't want to use any of the already defined style. I want to create my own. So in that case select that particular text, जो भी आपको जैसे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 का करना है. So select that text and then click on this button, more button in the style, and save selection as a new style. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके पास प्री डिफाइंड स्टाइल है सिर्फ उसी को आप यूज कर सकते हो, आप अपनी खुद की भी एक स्टाइल बना सकते हो. Save selection as a new quick style and give it the name as say figure. Now this figure is a new style that I have created. Okay. Next, this is the temperature anomaly. Click on figure and it will automatically take the figure number and it will apply all the styling. Okay, let's say, let me find another figure. Oh, it's not available, but you understand the concept I think कि जहाँ पे भी आपको ये फिगर का लेवल, फिगर का ये टाइटल देना है, वहाँ पे आप बस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करो और आपने जो स्टाइल बनाई उस पर क्लिक कर दो, आपका वो टाइटल आ जाएगा नंबरिंग के साथ. Okay, now the magic starts. The magic is now you have to create a table of content. Okay, तो टेबल ऑफ कंटेंट मुझे यहाँ पे इस वाले पेज पे बनानी है.
ओके, तो ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है। इसकी टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स कौन से चैप्टर, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन से पेज पे कौन सा टाइटल है, कौन से पेज पे कौन सा फिगर है, ये सब मुझे टेबल बनानी है। फॉर दैट, उसके लिए पहला जरूरी है कि आप सारे स्टाइल अप्लाई कर दो। ओके, देन गो टू द रेफरेंस रिबन एंड क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट। एंड इसमें जो ऑलरेडी दी है इसको सिलेक्ट मत करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हेडिंग 1 2 3 ही होता है, आप चैप्टर नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए गो टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। सी, अब देखिए इसमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 बाय डिफॉल्ट इसने दिया है। वर्ड में बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 तक की ही टेबल ऑफ कंटेंट बनती है, बट यू कैन कस्टमाइज इट। सो क्लिक ऑन modify, sorry, click on options, and here I want, now I want to keep, सबसे पहले मुझे रखना है चैप्टर का नंबर। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग है पहले तो इनको डिलीट करेंगे। सबसे पहले मुझे रखना चैप्टर का नंबर। चैप्टर का नंबर मैंने किस में सेव किया था, टाइटल में। सो टाइटल इज नंबर 1। उसके बाद मुझे डिस्प्ले करना है हेडिंग 1 2 and heading 2 is number 3. So now see, heading, the title will come as the first table of content, then heading 1 will come, then heading 2 will come, and click OK. See here, title will come like this, heading 1 will come like this, heading 2 will come like this, but I want this chapter number to be bold, ताकि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में अपना चैप्टर नंबर इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। उस केस में हम जाएंगे मॉडिफाई। TOC1 इज द फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट आइटम, इसको मुझे चेंज करना है, बोल्ड करना है। सो क्लिक ऑन दिस मॉडिफाई एंड देन मेक इट बोल्ड, क्लिक ओके। सो दिस टाइटल 1 विल बिकम बोल्ड। हेडिंग 1 आई वांट टू कीप एज 12 एंड नॉर्मल। हेडिंग 2 आई वांट टू कीप एज 11, क्योंकि हेडिंग 2 मुझे थोड़ी सी फॉन्ट साइज छोटी रखनी है। सो अगेन गो टू मॉडिफाई, TOC3, click on modify, and instead of 12 make it 11. Click OK. Okay, see, chapter numbers will be displayed as bold 12, heading 1 will be displayed as normal 12, and heading 2 will be displayed as 11 normal. Book entry everywhere. Tab leader, I personally prefer no tab leader, but you can keep as dash or underscore or dot, but I personally prefer no tab leader. Click OK, and it will create a table of content for you. Okay, so I'm giving it as a name of okay. So table of content, then this is chapter 1, this is your chapter 1, climate change is likely effect on water resources, then heading 1, और इसने पेज नंबर अपने आप ले लिया। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि बीच में कोई कंटेंट ऐड हुआ, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटेंट ये जो आपकी एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज है ये पेज नंबर 1 से, सॉरी, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 पे चला गया। पहले इसमें पेज नंबर भी हम डाल देते हैं, insert page number. Okay, this is page number. So evidence of climate change is presently on page number 2. हमने कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड किया और उस वजह से ये पेज नंबर 2 पे चला गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिमिलरली आपके आगे के भी ऐसा कई सारा हो सकता है कि इसका पेज नंबर के साथ में दूसरों के पेज नंबर भी चेंज हुए हो। ये आपका पेज नंबर 3 पे था, पेज नंबर 4 पे चला गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक and update field and click page numbers only and click. See, the page numbers will change. So आपका ये सारी मेहनत पूरी बच जाएगी if you create a table of content this way. Okay.
This is how you are going to save a lot of efforts. Um, you don't have to repeatedly change the page numbers and check and everything. And one more thing, accuracy will be very high. Let's say आपका यहाँ पे एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की जगह पे ये हुआ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड, इस हेडिंग का टेक्स्ट चेंज हो गया। इस केस में आपको अपडेट फील्ड में सिर्फ पेज नंबर नहीं, आपको इंटायर टेबल अपडेट करनी होगी। सी प्रेजेंटली इट इज एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हेन यू क्लिक ओके इट विल मेक इट एज अ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। ओके, जो भी आपका आपने चेंज किया है, आपके हेडिंग सब हेडिंग जो भी इसमें रेफर किया है वो सारे आपके टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड व्हेन यू टेक अ प्रिंट इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द पेज नंबर्स एंड एवरीथिंग। Okay, this is how the table of content works and styling works. But uh, for using table of content you should use styles. Similarly, इसी पैटर्न पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट ऑफ फिगर्स। लिस्ट ऑफ फिगर्स, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने फिगर्स हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। So again, you don't have to write figure 1, 2, 3 and so on and what are the page numbers. You have to just go and again click on reference table of content, click on insert table of contents, and instead of the default thing, go to options, remove everything जो वर्ड ने बाय डिफॉल्ट दिया उसको रिमूव करिए और आपको सिर्फ आप फिगर चाहिए, क्लिक ऑन फिगर एंड टाइप 1, क्लिक ओके, ओनली फिगर विल कम, नो टैब लीडर्स। Modify, I don't want it to be bold, so unbold it, make it normal, figure 1, none, click OK, and do you want to select the replace the selected table? No, I want to insert a new one. See, figure 1, CO2 levels in the history of Earth and temperature and all. ऐसे आपके जितने भी फिगर्स होंगे उन सब की लिस्ट आपको इसमें आ जाएगी। I will just show you an example how I did it for a report that I created. See, this is a report that I created when I joined NCA, and in this report there are something like 150 something pages, and there were some annexures also. So मैंने इसमें पूरा टाइप करने का काम पहले किया, then I applied stylings, then I created styles, new styles for figure. This is a style for picture, this is a style for table, and there is a style for figure also. See, so I have got 3 lists. If you go to home, if you see here, just let me go to table of content. This is the table of content which is automatically generated. Okay, it gives the chapter, heading, subheading, and third heading also. And then we have a list of figures. And believe me, I have not typed even a single letter in this list of figure. और मैंने एक भी पेज नंबर खुद से टाइप नहीं किया है, ये सारा वर्ड ने ऑटोमेटिक जनरेट किया है। तो जितने भी फिगर पूरी डॉक्यूमेंट में है वो सारे फिगर की लिस्ट यहाँ पे है। Then list of photographs, this is pick 1, 2, 3, 4 and so on, 36 photographs. List of tables, about 27 tables and so on. So this is how we can actually improve our efficiency and speed and accuracy also by using these styles and the reference table. Okay, so I hope you get the concept of styles and list of tables, table of contents, and also how you can format the entire document at once. Let's say I will just give an example in this only, in this document only. This is my heading 1. Instead of black, I want this heading 1 to be say blue. So I will just change it to be blue. Okay. Now this heading 1 has become blue, but हर जगह पे मुझे नहीं करना है। देखिए जैसे नर्मदा बेसिन यहाँ लिखा है या रिवर बेसिन ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे मुझे हर जगह नहीं करना है। What I will have to do is I will go here, right click on heading 1, right click on heading 1 and click update heading 1 to match selection.
everywhere in the document this thing will become blue. See, similarly I want the heading, this is heading 2, I want heading 2 to be say red color, make it red, click here, right click and update heading 2 to match selection. Everywhere in my document, wherever there is heading 2, it will change to red. Okay, so now let us see the next thing, next ribbon. This is the first ribbon. इस ribbon में सबसे ज़्यादा powerful, सबसे ज़्यादा useful जो tab है वो है styles का. And then let's see the insert menu. In the insert ribbon you can see mostly जो चीजें हैं वो सारी common चीजें हैं. इसमें bookmark cross reference important है जो कि आपका reference ribbon में भी आएगा. So I will cover it there. And इसके अलावा और कुछ मुझे इतना important लगता नहीं है. Page layout, almost everything is known to you. So that is again mostly drafting part. So I will not cover it. References. इस रेफरेंसेस में हमने अभी टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया. सी देयर इज सम, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फुट नोट. फुट नोट मीन्स लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट अ फुट नोट, से दिस वन, रानी अवंतीबाई सागर डैम और बरगी डैम. I want to give some description of this dam at the bottom of this page. So I will mark it as a start, and इस स्टार के बाद में यहाँ पे मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी और उस लाइन के नीचे में इस बरगी डैम का डिस्क्रिप्शन होगा. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू इज यू इंसर्ट अ फुटनोट. ओके, इंसर्ट अ फुटनोट एंड दिस फुटनोट इज, ये बरगी डैम है, यहाँ पर ये बरगी के आगे वन आ गया. दिस बरगी डैम का कुछ भी डिस्क्रिप्शन, now this one is the description of Bargi Dam. Now another footnote I want to create, ISP, Indira Sagar project. Click on insert footnote. This will automatically make as a number 2 description of Indira Sagar project. Now third one, I want to make another footnote for Omkareshwar. स्टोरेज प्रोजेक्ट. ओके, ये 3 फुटनोट मैंने इस पेज पे लगाए. इसका चाहे तो फुटनोट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस बटन. यू कैन चेंज द फॉर्मेट. इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फॉर्मेट आई वांट टू मेक स्टार एंड दिस स्पेशल सिंबल. क्लिक ऑन ओके. सो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 इट विल नाउ मार्क इट एज अ स्टार एंड हियर इट इज अ क्रॉस एंड हियर इट इज अ डबल प्लस साइन. इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट से I want to be 1 2 3 or even Hindi kakaga, or so I want to make it say 1 2 3 or now and click apply. Okay, and this is how it works. This 3 has come here, just a second. Okay, so this is how it works. The footnote and end note. Footnote and note में ये difference होता है कि footnote is always at the end of that page. Footnote means यहाँ पे जितने भी notes हैं उन सब का इसी पेज पे डिस्क्रिप्शन आएगा. End note means ये सारा डिस्क्रिप्शन एक साथ चैप्टर के एंड में रहेगा. That is the end note. Okay, ये सेम थिंग है. End note will be similar to footnote, लेकिन सारे वो आपके पेज के एंड, चैप्टर के एंड में रहेंगे. साइटेशन जनरली हम लोग यूज करते नहीं है, बट इट इज सिमिलर. जैसा अभी यहाँ पे हमने देखा है कि 1 या 2 या 3 है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है. सिमिलरली साइटेशन का क्या होगा कि जैसे आई विल टेक एन एग्जांपल. ओके, लेट्स से दिस 5800 MCM और 4.73 MAF. It was given by नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल, एंड मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देना है, इसको साइट करना है कि ये
नर्मदा वाटर NWDT अवार्ड से आया है. सो आई विल जस्ट पुट अ insert citation and okay, first I have to create a source of the citation कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे वर्ड फाइल में रखे हैं. सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, ये एडवांस फीचर है, बट इट इज सिमिलर टू द फुटनोट एंड नोट कि आप यहाँ पे जैसे ही साइटेशन लगाते हैं वो एक यहाँ पे स्टार या 1 ब्रैकेट में 1 या ब्रैकेट में 2 वो लगा के उसको साइट कर देता है चैप्टर के एंड में. बिब्लियोग्राफी में, बिब्लियोग्राफी आपकी हर चैप्टर के एंड में भी हो सकती है और आपके पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में भी हो सकती है. ओके, दिस इज हाउ द साइटेशन वर्क्स. Now, caption is basically for figures. हर फिगर के बॉटम में एक कैप्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है. जब आप ये कैप्शन लगाते हैं तो उसके बाद में उसमें आप फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते. और उसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जब हम चाहते हैं कि लेफ्ट या राइट अलाइन करना है तो वो नहीं होता है. ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है. इसलिए व्हाट आई प्रिफर इज यू क्रिएट ए स्टाइल फॉर फिगर एंड देन यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग ओनली वन पर्टिकुलर स्टाइल. ओके, कैप्शन में पर्सनली यूज नहीं करता हूँ, बट स्टिल लेट्स से इस फिगर का मुझे कैप्शन देना है. सो आई विल जस्ट गिव एग्जांपल. फिगर 1 इज it's a figure, whether it's a table, equation or figure, it's a figure. Below selected item और above selected. जनरली टेबल के लिए हम above selected item करते हैं और फिगर के लिए हम below selected. क्लिक ओके. अब ये आपका फिगर 1 नाम से आ गया. ये इस पर्टिकुलर फिगर का कैप्शन है. बट अगर आपको इस इमेज को छोटा करना है, इस इमेज को यहाँ पे रखना है, तो ये इसके साथ उधर नहीं जाएगा. ये प्रॉब्लम आती है. इसलिए what I generally prefer is I create a new style and then I just create a table for that. But this is how you can give the caption for a figure. Similarly, index में जैसे कि नर्मदा बेसिन अगर मैं बोलता हूँ नर्मदा बेसिन. So in this Narmada basin, I want to create a entry in the index table at the end of the book. कि बुक के एंड में एक एक इंडेक्स बनानी है जिसमें नर्मदा बेसिन जहां जहां लिखा है वो सब पेज नंबर की लिस्ट आ जाए. तो यहाँ पे हम एक मार्क एंट्री करेंगे. नर्मदा बेसिन पूरा सिलेक्ट करके मार्क एंट्री नर्मदा बेसिन. सब एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड. सब एंट्री मीन्स एक पर्टिकुलर जैसे बेसिन के अंदर में ड्रेनेज एंड फॉरेस्ट एरिया, सो वो दैट विल बी सब एंट्री. ओके, दिस विल बी अ मेन एंट्री. क्रॉस रेफरेंस फॉर सी करंट पेज. जो भी ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट है वो रहने दीजिए एंड क्लिक ऑन मार्क. ओके, सो आपके पूरे पेज में जहां जहां पे नर्मदा बेसिन लिखा हुआ है वहां पे सभी जगह पे ये मार्क हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज नर्मदा बेसिन. दिस इज अ टाइटल. दिस इज द ये जो XE नर्मदा बेसिन लिखा है, दिस इज द इंडेक्स का साइटेशन. एंड फाइनली जब एंड में जाते हैं सब बुक के एंड में, वहां पे हम इंसर्ट इंडेक्स करेंगे. सो इट विल क्रिएट अ टेबल ऑफ इंटायर लिस्ट ऑफ द टेक्निकल टर्म्स. ऐसा आप कई सारे, जस्ट लेट मी स्विच ऑफ दिस थिंग. इसी नर्मदा बेसिन जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पेज नंबर 8 पे मैंने नर्मदा बेसिन लिखा है. पेज नंबर 8 पे नर्मदा बेसिन है, इसकी एंट्री लास्ट में इंडेक्स में आ जाएगी. सिमिलरली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इस पे मैं एक साइटेशन लगाना चाहता हूँ. इंडेक्स का साइटेशन लगाना चाहता हूँ. तो क्लिक ऑन मार्क एंट्री इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एंड क्लिक ऑन मार्क. Click close. Now again there are two options, mark and mark all. Mark means सिर्फ इसी जगह पे मार्क होगा. मार्क ऑल मीन्स पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे वो टेक्स्ट लिखा है सभी जगह पर मार्क हो जाएगा. से नर्मदा सागर में मार्क ऑल करता हूँ. क्लिक ऑन रेफरेंसेस, मार्क एंट्री नर्मदा सागर एंड मार्क ऑल. तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे नर्मदा सागर लिखा है सभी जगह पे वो साइटेशन ऐड हो जाएगा. अगेन आई विल ऐड अनदर वन.
Indra Sagar, only Indra Sagar. Click on the reference, then click mark entry, then mark all, close. अब आपको क्या करना है, आपका लास्ट में, सबसे आखिरी में, लास्ट में जनरली इंडेक्स जो भी होता है बुक के लास्ट में होता है, गो टू रेफरेंसेस एंड क्लिक ऑन इंसर्ट इंडेक्स। तो जो भी एंट्रीज आपने करी हैं वो सारी आपकी इसमें मार्क हो जाएगी। ओके, टेक अ टेम्पलेट, एनी टेम्पलेट यू वांट टू यूज, क्लिक ओके। हमने जो जो एंट्री की थी इंदिरा सागर की, हमने जहां जहां पे इंदिरा सागर लिखा हुआ है वो सारे पेज नंबर यहाँ लिखे हुए आ गए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट पेज नंबर 8 पे था सिर्फ। नर्मदा बेसिन सिर्फ पेज नंबर 8 पे, क्योंकि हमने मार्क ऑल नहीं किया था, हमने सिर्फ मार्क किया था, इसलिए नर्मदा बेसिन का पेज नंबर 8 पे आया। नर्मदा सागर पेज नंबर 8, 12, 3, 13, 100, 101 एंड सो ऑन। So index is actually, you know what is the concept of index, but now you know how to insert an index. An index is very helpful in case of big book or big documents. Okay? And it is always a good practice to insert the index, mostly for technical terms or for important terms in your report or in your document. Okay. Final is the citation of authorities. It is similar to the index citation, not index, citation of and the bibliography. So if you can do citation for bibliography, you can do citation for authorities also. Okay. So I think we will close this session now. It's a 1 hour session. Thank you once again. We will take a break, and in the next session, I will discuss the remaining 4 ribbons. Okay. Thank you. Thanks a lot.